Hello students. In our first video lecture, we learned about colonialism in Asia and Africa, a very important topic in our second chapter, First World War and Russian Revolution. Now, today we are going to learn another important topic, that is factors that caused the First World War, the reasons behind the First World War. The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable events of the modern world. Many factors were responsible for this. The First World War began on 1st August 1914. Germany had defeated France in the Sedan War, because of which France had to sign the Frankfurt Treaty in 1871, according to which France had to pay a war fine as well as give away two of its provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. France had not been able to overcome this humiliation. Thus, the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. The end of a war sowed the seeds of future war. प्रथम विश्व युद्ध को आधुनिक दुनिया की सबसे दिल दहला देने वाली और अविस्मरणीय घटनाओं में से एक माना जाता है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार थे। वर्ल्ड वॉर 1 1 अगस्त 1914 को शुरू हुआ था। जर्मनी ने फ्रांस को सिडान युद्ध में हराया था, जिसकी वजह से फ्रांस को 1871 में फ्रैंकफर्ट संधि पर साइन करनी पड़ी थी, जिसके अनुसार फ्रांस को युद्ध का जुर्माना देने के साथ साथ अपने दो प्रांत लॉरेन और अल्सेस जर्मनी को देने पड़े थे। फ्रांस इस अपमान को कभी भुला नहीं पाया था और इसीलिए फ्रैंकफर्ट संधि ही प्रथम विश्व युद्ध का एक कारण बनी थी, क्योंकि एक युद्ध के अंत ने भविष्य के युद्ध के बीज बोए थे। नाउ द फर्स्ट फैक्टर इज द इकोनॉमिक फैक्टर। England had established its vast empire in Asia and Africa in the 19th century. It exploited its colonies economically and became rich. Due to industrialization and swift colonization, Europe required huge quantity of raw material. In the last quarter of the 19th century, Germany had started the competition to procure the markets in Asia and Africa. Germany started supplying cheaper goods in comparison to England and France. The Afro-Asian markets that England and France dominated were thus broken up by Germany. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. We सारे वेस्टर्न यूरोपियन देश थे, वो चाहते थे कि हम अफ्रीका और एशिया में अपनी अलग अलग कॉलोनीज बनाएं, जितना हो सके हम एरिया कब्जा करें। इसको कहा गया था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका को कैप्चर करने की दौड़, कि आप जितना हो सके जितना तेज़ी से आप कैप्चर कर सकते हो आप कर लीजिए, क्योंकि अफ्रीका बहुत ही बड़ा था और पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ था। ये 1880 के बाद शुरू हुआ, जब बड़े बड़े देशों ने लंबे चौड़े एरिया अफ्रीका में कब्जे कर लिए, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, इन सब ने। ब्रिटेन इन सब में सबसे आगे था और सब चाहते थे कि ब्रिटेन जैसा कर रहा है हम इनके जैसे ही सब कुछ करें, इनको ही फॉलो करें। ब्रिटेन काफ़ी सक्सेसफुल था, जैसे कि हमने हमारे इंडिया के मामले में देखा है कि इंडिया पे राज करना बहुत ही मुश्किल था, पर ब्रिटिश इसमें सक्सेसफुल रहे। पूरी दुनिया के 25% एरिया पे एक टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर का राज था और इसी कारण इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, लेबर भी था। जिसका एक एग्जांपल है कि भारत से 13 लाख सोल्जर वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़ने गए थे, जो उनके खुद के सोल्जर्स से ज़्यादा था। इनकी जो खुद की आर्मी थी उनमें भी उतने सोल्जर्स नहीं थे जितना हमारे इंडियन सोल्जर्स गए थे। ये इनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था
हमारे यहाँ कॉलोनी एस्टैब्लिश करने के बाद, मैन पावर, रिसोर्सेस वगैरह वगैरह। और इसीलिए जर्मनी और इंग्लैंड के बीच एक बहुत ही गहरा कंपटीशन, इकोनॉमिक कंपटीशन चालू हो गया था, जो एक मुख्य कारण बना वर्ल्ड वॉर 1 के लिए। नेक्स्ट इज मिलिटरिज्म। Military force was necessary and important for the competition that the European nations got into for expansion. England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power. While in countries like Japan, Italy, and Germany, compulsory military training had started. Production of weapons was increased under the pretext of self-defense. Thus, militarism got an impetus and military competition added to the economic competition created a serious atmosphere of war. हर देश ने अपने आप को आधुनिक हथियारों से सक्षम करने की कोशिश की। मशीन गन्स का आविष्कार हुआ था और पहली बार दुनिया में मशीन गन्स वर्ल्ड वॉर 1 में यूज किए गए थे। टैंक का भी पहली बार इस्तेमाल किया गया ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध में। बड़े बड़े जहाज बनाए गए थे जो बहुत तेज होने के साथ साथ बड़ी बंदूकों से लदे थे, और इसमें भी ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। सबने बड़ी बड़ी आर्मीज बना ली थी। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले इतनी आर्मीज कोई नहीं रखता था, पर युद्ध की तैयारी के लिए बहुत से देशों ने बड़ी आर्मीज खड़ी कर ली थी। ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैला था और ये सबसे डेवलप कंट्रीज थे। इसीलिए इन्होंने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल किया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। नए नए हथियार, टैंक्स, रॉकेट्स वगैरह के परीक्षण किए जाने लगे इन फैक्ट्रीज में। दूसरे देश भी कोशिश कर रहे थे कि हम भी ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर लें, लेकिन ये दोनों दूसरों से कई गुना आगे थे। इस मिलिटरिज्म के कारण एक धारणा बनने लगी सभी देशों में कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि कोई हमें दूसरा देश हरा नहीं सकता, और इसी गलत धारणा के चलते कई देशों ने अपनी आर्मी की साइज को बढ़ा लिया। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज। Groupism and secret treaties played a major role in the First World War. The world was divided into two groups before the First World War. On one side was the group of Germany, Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey, while on the other side was the group of England, France, Russia and Japan. A feeling of jealousy, enmity, mistrust, fear and hatred evolved between the groups, which was an important factor of the First World War. ग्रुपिज्म, अलायंसेस या फिर संधियाँ जो कि यूरोप में साइन की गई। यूरोप में 19th सेंचुरी में पावर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ गुपचुप समझौते कर लिए। कई सारी सीक्रेट ट्रीटी साइन करी गई जो दूसरे देशों को पता नहीं होता था कि भाई इन दो देशों के बीच अलायंस है या फिर कोई समझौता किया हुआ है। इनमें से दो इम्पोर्टेंट अलायंसेस थी जिसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पहले है ट्रिपल अलायंस जो कि 1882 में करी गई थी। किन के बीच में थी ये? तो ये तीन देश के बीच में थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ऑस्ट्रिया हंगरी तभी एक साथ थे। और दूसरा है ट्रिपल एंटांटे जो 1907 में साइन किया गया था। किन के बीच में? फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में। पहले 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसे कहा गया था फ्रेंच में एंटेंटे कॉर्डियल। फ्रेंच में इसका नाम था एंटेंटे कॉर्डियल। किसके बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। और फिर उसके बाद रशिया इसमें जुड़ा था, तो ये हो गया ट्रिपल एंटेंट। उसके बाद 1914 में जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के बीच भी समझौता हुआ था।
तो ये और एक फैक्टर था, ग्रुपिज्म, अलायंस, सीक्रेट ट्रीटीज, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ। फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म। द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम and Greece and the unification of Germany and Italy were the result of nationalism. But later, the feeling of nationalism took an extreme and narrow form in Europe. Economic jealousies, competitions, and colonialism in Europe had increased so much that the national interests of each other began to clash. Leading European nations began teaching extreme and destructive nationalism to its people. Love for our own nation and hatred for the other nations was encouraged. The German chief Kaiser William was the other originator of nationalism and colonialism. He was overambitious and believed in world leadership. He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. The feeling of war spread across other nations, as in Germany, and this had resulted in the First World War. ये जो देशभक्ति की भावना है, ये 19th सेंचुरी में इसने पूरे यूरोप को अपने आप में जकड़ लिया था। ये देशभक्ति यूरोप के देशों में जैसे कि जर्मनी, इटली, बाल्टिक देश, इन सब में ऐसे सर चढ़ के बोली कि इन देशों में एक धारणा बन गई कि लड़ाई जो है वो ग्लोरियस है, यानी कि लड़ाई लड़के ही कोई भी देश महान बन सकता है। किसी भी देश की महानता वो कितनी लड़ाइयाँ जीतता है या फिर कितना बड़ा एरिया कैप्चर करता है, उसी पे तय होने लगा। खुद के देश से प्यार और दूसरों के देशों से नफरत करना, ऐसी भावनाएं सभी में सिखाए जाने लगी और यही फियर्स नेशनलिज्म बना एक कारण पहले विश्व युद्ध का। रोल ऑफ न्यूज़पेपर्स। द न्यूज़पेपर्स ऑफ द यूरोपियन नेशंस aroused so much of hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated, and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nations could not even make efforts for establishing peace and harmony. यूरोपियन नेशंस के न्यूज़पेपर्स अपने विरोधी देशों के लिए अपमानजनक, भड़काऊ और झूठे लेखन लिख के एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते रहे, जिसकी वजह से जो संबंधित राष्ट्रों के शासक थे वो शांति और सद्भावना स्थापित नहीं कर पाए। फिलोसॉफी अबाउट वॉर। द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर took root in Europe. The German writer Trotsky published maxims like only the mighty deserve to live and war alone is the national need. Nietzsche, the German writer, expressed war as a sacred work. वॉर को ग्लोरीफाई किया गया। अलग अलग किताबों में, अखबारों में, लेखकों के लेखन में उन्होंने कहा कि लड़ाई ज़रूरी है, बिना युद्ध के कोई देश बन नहीं सकता और कोई भी देश बिना युद्ध के महान नहीं बन सकता। किसी भी देश को अगर बढ़ाना है तो युद्ध ज़रूरी है और अगर किसी भी ऊंचाई को छूना है तो युद्ध ही एकमात्र उपाय है। जर्मन राइटर ट्रॉट्स्की ने लिखा कि जो शक्तिशाली है उन्हें ही जीवित रहने का अधिकार है और युद्ध एक राष्ट्र की ज़रूरत है। निएत्शे ने अपने लेखन में युद्ध को एक धार्मिक काम बताया था। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया and his wife were assassinated by being shot at by a member of the Serbian terrorist organization Black Hand. Austria blamed Serbia for the involvement in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Austria within 48 hours. Serbia declared its ignorance in the matter. Without listening to anything from Serbia, Austria declared war on Serbia. The First World War had begun with this. आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनांड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी ये कौन थे? ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के प्रिंस थे, राजकुमार थे और अगले राजा यही बनने वाले थे। इनके अंकल की मौत के बाद इनका राजा बनना तय था। पहले से ही घोषणा हो चुकी थी कि यही अगले राजा बनेंगे और हुआ ऐसा कि ये अपनी वाइफ के साथ साराजेवो नाम के शहर में एक टूर के लिए आए थे। ये शहर आज बोस्निया में है। यहाँ पे इनके ऊपर हमला हुआ 28 जून 1914 को। गैरिलो प्रिंसेप नाम के आदमी ने इन पे हमला किया
उसके साथ कुछ और भी लोग थे जो ब्लैक हैंड के नाम से जाने जाते थे। अब किसी आम आदमी की नहीं, एक राजकुमार की जो राजा बनने वाला था उसकी हत्या हुई थी। तो जाहिर है सबको जवाब चाहिए था। तो धमकी दी गई सर्बिया को। क्यों? क्योंकि सर्बिया जो कि बोस्निया का पड़ोसी था और एक अलग किंगडम था, उस पर आरोप था कि सर्बिया बोस्निया की मदद कर रहा था इंडिपेंडेंट होने के लिए, और सर्बिया के लोगों ने ही ये साजिश रची है फर्डिनांड की हत्या करने में। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर ने एक अल्टीमेटम दिया कि आप हमारी कुछ मांगे पूरी करो, और ये बहुत ही पेचीदा मांगे थी जो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। उनका कहना था कि आप अपनी आर्मी के साथ सरेंडर हो जाओ और अब से सर्बिया पे हमारा कब्जा होगा। इसीलिए सर्बिया ने मदद मांगी रशिया से। रशिया और सर्बिया में स्लाविक एथनिसिटी के लोग बसते हैं, तो इसीलिए रशिया ने मदद के लिए राजी हो गया और अपनी आर्मी तैयार करना चालू कर दिया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी गया जर्मनी के पास कि भाई 1882 में हमने ट्रीटी साइन की थी, तो अब हमारी मदद करने का टाइम आ चुका है। और जर्मनी ने भी ऑस्ट्रिया को अपना पूरा सपोर्ट दिया। इसी तरह ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसके तुरंत बाद रशिया ने जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया, और कुछ ही दिन बाद फ्रांस ने भी जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर किया। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा, रशिया और फ्रांस ट्रिपल ऑन्टेंट ट्रीटी से बंधे हुए थे, इसीलिए फ्रांस ने रशिया का साथ दिया। इन सब वाक्यों को हिस्ट्री में जुलाई क्राइसिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी घटनाएं जुलाई के महीने में हुई थी, और ऐसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस वाज द एंड ऑफ आवर second video lecture of our second chapter, First World War and Russian Revolution. In the next video lecture, we will see into the First World War and the effects of the First World War.